हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ। ਕੌਂਗਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A = B mod M। ठीक है जी, A = B mod M है। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ M ਜਦੋਂ A ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ B ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ M ਡਿਵਾਈਡਸ A, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ B। ज़्यादा बेटर ये हैगा कि M डिवाइड्स, मतलब बोथ वेज इंप्लाइज कह लो, A - B। देखो पहले वाली डेफिनेशन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ 12-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੌਂਗਰੈਂਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਂਗਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो A = B mod M, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ, M ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ M ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡ A, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, B। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 13 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ, 4 ਤੀਏ 12, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਇਆ? 1। ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 13 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਟਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ mod 5। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਇਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਮਤਲਬ 5 4 ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ -1 ਦੀ, ਮੀਨਸ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 - -1, 5 ਪਰਫੈਕਟਲੀ -1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 0 ਪਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 17 = 3 mod 4। ਸੋ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ 2 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 17 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 17 ਅਤੇ 3 4 14 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 14 = 4 × ਇੰਟੀਜਰ, ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। A ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲੋ, ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਟੂ B ਮੋਡਿਊਲੋ M, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ M ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, A ਐਂਡ B ਆਰ 2 ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ, M ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, A ਐਂਡ B ਆਰ 2 ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੈ, M ਵਾਲੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। A ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਟੂ B, ਦੈਨ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A = B mod M ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਲਈ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰ ਆਲ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A,
ए बिलोंग्स टू आर। मैं मन के चलदा तुहानूं ऑलरेडी ये आउंदा है, नहीं आउंदा तो लैक्चर मेरे रिलेशन ते भी बने हुए ने। सो ਇਹਦਾ मतलब जे मैं ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ए इक्वलेंट टू ए मॉड एम लिखा तो ਇਹਦਾ मतलब एम डिवाइड ए माइनस ए होना चाहिए, जो कि ट्रू है क्योंकि जीरो ਨੂੰ ਸਾਰੇ डिवाइड करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ पास आ वाली चीज़ ट्रू है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, क्योंकि मैं ये लिख के स्टैप मैं इन्हों प्रॉपरली यूज़ करना है। सो इस करके ये चीज़ जरूरी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे। दूसरी जिहड़ी मेरी प्रॉपर्टी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, दूजी मेरी प्रॉपर्टी हैगी है उस विच मेरी सिमेट्री होंदी है ना। सो ए इक्वलेंट टू बी मॉड एम है ना, ਇਹਦਾ मतलब एम डिवाइड्स ए माइनस बी करूँगा, पक्की गल आ। तो जे ए माइनस बी नूं एम डिवाइड करदा एम इंटू Z1, इत्थों ना नैगेटिव नाल गुणा कर दो। सो ये आ जाऊगा एम इंटू नैगेटिव Z1, नैगेटिव ना गुणा करती, चाहे इंटीजर है तो यदा मतलब एम ने तो डिवाइड्स हुण बी माइनस ए नूं कर लेना, ਇਹਦਾ मतलब b इज़ इक्वल टू मॉड m। सो ਇਹਦਾ मतलब तुसी चाहे ऐ लिखो चाहे तुसी ऐ लिखो, अगर क्वेश्चन च बदलना पै जाए तो घबराना नहीं है, सिमेट्री होल्ड करती है, सिमेट्री होल्ड्स। सो सिमेट्री होल्ड करती है, इस करके आपने ख्याल रखना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब क्या हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ सिमेट्री भी होल्ड कर गई। तीजी चीज़ है ट्रांजिटिविटी, और ट्रांजिटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो मैं ये पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करूँगा ना फिर तुसी देखना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। तो ਜਿਹੜਾ हैगा ट्रांजिटिविटी की हुंदी है, ट्रांजिटिविटी वैसे रिलेशन च मैं तुहानूं डेफिनेशन दसदा, ए तो बी रिलेशन विच होवे, बी तो सी रिलेशन विच होवे, इट इंपलाइज ए तो सी रिलेशन विच होवे, ठीक है। इनू असी ट्रांजिटिविटी कहने तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब की होया ए इक्वलेंट टू बी मॉड एम होवे, बी इक्वलेंट टू सी मॉड एम होवे, इट इंपलाइज ए इक्वलेंट टू सी मॉड एम। और तुसी ऐ कह लो भी आ जिहड़ी प्रॉपर्टी है ना, ये कॉन्ग्रेंस रिलेशन की जान है, ठीक है। तुसी कई सारे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन जोड़े बड़े बड़े रिमाइंडर वाले क्वेश्चन ने वो तुसी इस ट्रांजिटिविटी ना चक देने, और मैं तुहानूं प्रॉपरली स्पैसीफिकली एग्जाम्पल्स ना कराऊँगा, तुसी देखियो तुहाडे पास भी ट्रांजिटिविटी क्या रोल प्ले करती है। तो बाई चांस जो मैं प्रूफ देना होवे एम ए माइनस बी नूं डिवाइड करता, यस, एम बी माइनस सी नूं डिवाइड करता, यस, ठीक है जी। तो फिर तुहानूं ये पढ़ाया सी, जे तुसी ए नूं भी करते हो बी नूं भी तो उन्हां दे जोड़ नूं भी करोगे, सॉरी एम। सो एम डिवाइड्स ए माइनस सी, ये मतलब ए इक्वलेंट टू सी मॉड एम। तो जे सी इक्वलेंट टू ए मॉड एम लिख लिया तो भी कोई रोले वाली गल नहीं हैगी, क्योंकि सिमेट्री तो असी प्रूव कर दी, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो जांदियां ने तो यदा मतलब तुसी इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो पेपर विच सीधा भी पूछा जा सकता है कि कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो विच इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करता है या इक्विवेलेंस रिलेशन च कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी जिहड़ी हैगी है वो होल्ड करती है, तो तुसी उत्थे ऑप्शन टिक कर देनी हैगी जिहड़ी भी है, ठीक है जी। हुण आपां एक प्रॉपर्टी एक तो प्रॉपर्टीज़ होर लईए, फिर आपां एक न्यूमेरिकल क्वेश्चनस लवांगे तुहाडे कोल, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगा वीडियो। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए इज़ इक्वल टू बी मॉड एम हुंदा है तो जोड़ ऐड करे तो कोई फर्क नहीं पैंदा, तो ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी मॉड एम हुंदा, ठीक है। या गुणा च भी कोई फर्क नहीं पैंदा। सोचो हो सकता है, देखो कि मैं ब्यूटी ऑफ डेफिनेशन इनू डिवाइड कर दो, कोई फर्क पिया ना, ए ते बी, ये मतलब इनू ए सोचो ना, इनू बी सोचो ना। अगर एम ए ते बी हुंदा तो मॉड च एम रखो, ए इक्वलेंट टू बी हुंदा, सो ए प्लस सी हो गया, कोई दिक्कत वाली गल है ही नहीं।
तो जे तुसी कहो गुणा च करना, हाँ जी गुणा च भी देख लो। गुणा च ए इक्वलेंट टू बी हैगा ना, सो एम डिवाइड्स ए माइनस बी तो हैगा ही हैगा। जे ए माइनस बी है तो उन्होंने किसी मल्टीपल नू भी पक्का डिवाइड करूँगा। सो जो मल्टीपल नू डिवाइड करूँगा एम सी ए नू भी करूँगा, सी बी नू भी करूँगा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ मतलब ए सी इज़ इक्वल टू सी बी मॉड एम होया। स्टैप कराने का मतलब की है? स्टैप कराने का मतलब है कि तुसी अगर इदां दा क्वेश्चन आ गया, तुसी वेरीअस पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनियां ने भी ऐ भी हो सकता, ऐ भी हो सकता, ऐ भी हो सकता। और असी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल असी उन्ना सिलेबस बहुत अच्छी तरह कर लो कि असी 120 प्लस 121 बाई 23 इन्ने क नंबर लै जाइए। 150 तो होने ही नहीं है। वो तो चाहे टीचर बैठ जाए पेपर देन, 2-4 क्वेश्चन उन्होंने शायद आते ना हो तो बाकी टाइम सिर पूरे होण ना। तो इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा उही, जे कोई तुहानूं बहुत मुश्किल टॉपिक लगदा तुसीं स्किप कर सकते हो। कई बार बाइलक उस चों आंदा ही नहीं गा। हुण जिहड़ा एक रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट ये है भी जदों तुसीं ए इक्वलेंट टू बी मॉड एम, ठीक है। सो ए इक्वल टू बी मॉड एम लिखते हो तो मैं हूँ थोड़ा रिजल्ट पढ़ाया तो आ लिख लिया आप, है ना। बट उल्टा नहीं चल सकते। ए सी बी सी मॉड एम इंपलाइज ए इक्वल टू बी मॉड एम, ये नॉट ट्रू है। या आप कह लिए कन्वर्स ऑफ दिस इज़ नॉट ट्रू, कन्वर्स नहीं ਇਹਦਾ ट्रू हैगा। ਹੁਣ नॉट ट्रू होया नहीं हैगा तो फिर बंदा कहता काउंटर एग्जाम्पल दो जी तुसी। बना लिए कोई 16 इक्वल टू 8 मॉड 4, ठीक है। जिहड़ा पूरा पूरा डिवाइड होंदा उस रिमाइंडर की जरूरत नहीं पैंदी हैगी तुहाडे कोल। तुसीं को 16 नूं 4 नाल डिवाइड करदा रिमाइंडर नहीं तो फिर ये डिफरेंस नूं भी डिवाइड कर रहा, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब 4 जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है जी तुहाडे कोल। तो तुसीं देखो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा 16 8 डिफरेंस नूं कर रहा डिवाइड कर रहा ना। कोई बंदा कहता 8 कैंसल कर दो जी, मतलब इनू मैं 8 इंटू 2 लिख सकदा, 8 इंटू 1 लिख सकदा। सो कॉमन फैक्टर मेरा सी आ गया। कोई बंदा कैंसल कर दे इनू तो ऐ लिख लवे। तो 4 है जिहड़ा तुहाडे कोल, ये तो नहीं ट्रू हैगा। 4 2 तो 1 डे डिफरेंस नूं डिवाइड नहीं करता, सो नॉट ट्रू आ जाऊगा। सो ये नॉट ट्रू आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ पास बई तुसी हुण इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर इदां दे हालात आ गए कदे कॉमन कढ़ के कट्टण की कोशिश ना करना इस चीज़ का जिहड़ा हैगा, ठीक है जी। हुण अगर इस डेफिनेशन की मैं एक एप्लीकेशन देखा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मैं बाद विच करांगा तुहाडे कोल जिहड़ा है जस्ट एक एप्लीकेशन देख ला तुहाडे कोल। और वो एप्लीकेशन की हैगी है कि मैं कॉन्ग्रेस च पावर भी रेज़ कर सकदा वां। सो पावर रेज़ करने वाली प्रॉपर्टीज़ भी हैगियां ने तुहाडे कोल। तो कॉन्ग्रेस च बहुत प्रॉपर्टीज़ ने, ठीक है जी। तो मतलब अब मैं भी एक प्रॉपर्टी तुहानूं लिख देना तुहाडे कोल। प्रॉपर्टी है कि अगर आ भी प्रॉपर्टी बहुत एलिगेंट है, ए इज़ इक्वल टू बी मॉड एम आ जाता, ठीक है। तो तुसी कोई भी के पॉजिटिव इंटीजर इन्हां दी पावर रेज़ कर सकते हो। बट शर्त की है तुहाडे पास के पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है जी। सो बहुत ईजी है, तुसी आराम नाल इहदा प्रूफ दे सकते हो। फिर तुसी को जी लिखाया क्यों है, यूज़ देखो तुहाडे को, ठीक है जी। बस लास्ट क्वेश्चन है जी मेरा, मैं अगली बार लूँगा फिर बाकी, क्योंकि कुछ टाइम दियाँ कंसटेंट्स होंदियां ने। तो उस तो बाद वो तुहानूं कहंदा कि जदों ना 3 2 की पावर 100 नूं डिवाइड करदा, फाइंड रिमाइंडर। सो इदां दे क्वेश्चन किद्दां हैंडल करने ने, कमिंग लैक्चर्स बहुत सारे क्वेश्चन देखांगे, ठीक है। यूलर 5 फंक्शन पढ़ाना, ये वो बहुत कुछ ने चीज़ां। सो 3 इनू डिवाइड करदा तो इस टाइम तुसी पता की करना हैगा तुहाडे कोल, तुसी जिहड़ा डिवाइड करदा ना उन्होंने मॉड्यूलो च रखना। सो तुसी 2 और 1 का मॉड्यूलो रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। सो 2 इक्वलेंट टू -1 मॉड 3, ठीक है जी। ये रिलेशन आ 2 ते 3 का मॉड्यूलो रिलेशन बनाने की कोशिश करनी। सो 2 इक्वलेंट टू -1 मॉड 3 हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तुसी 2 की पावर 100 रेज़ कर दोगे। सो 2 की पावर 100 इक्वलेंट टू 1,
ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆਹ, ਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਨੂੰ 7 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।